Hello everyone, welcome back. In last lecture we have done about the merits and limitations of partnership. Now we are going to start about the types of partners. Yes, in partnership also there are many various types of partner. सर हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर कुड बी देयर पार्टनर तो एक जैसे ही होते हैं नहीं बेटा उनके फंक्शंस और रोल के आधार पर पार्टनर को बाइफरकेट किया जा सकता है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर सीक्रेट पार्टनर नॉमिनल पार्टनर पार्टनर बाय स्टॉपल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सी the main difference between this partner will be from the following things like capital contribution like management like profit and losses sharing and liability. You can see here that active partner contributes capital, he participates in management of the firm, share profit and losses, and it has or he has unlimited liabilities. Sleeping or dormant partner, as the name itself suggests, he is sleeping or dormant, means he is not active in management. But apart from being active, the features is same as like the active partner. He contributes capital, he share profit and losses, he has unlimited liability, but he does not participate in management. Secret partner, as the name suggests, secret partner means who is secret to the firm. It means that the remaining partner of the firm may be knowing or they are aware about that he is the partner, but outside parties or public they are not aware about the partners. Okay, I will discuss this all things in detail why it is so and why it is not. But secret partner does everything as active partner does, but he participate in management very secretly, means he doesn't disclose that he is the part of management or he is a partner to the firm. Nominal partner, he does not contribute capital, he does not participate in management, generally does not share profit, and also he has unlimited liability. Why it is so, I will tell you. Partner by estoppel, partner by holding out, they only have unlimited liability, otherwise they do not contribute, they do not participate, they do not share, right? Only they have unlimited liability. So let me discuss this in details. So by this prima facie you may be knowing now that there are total 6 types of partner. First is active, second is sleeping, third is secret partner, fourth is nominal partner, fifth is partner by estoppel, and last one is partner by holding out. Okay, these two are the special types of partner, or I can say that they are not the partners, they are being taken to be as a partner because of some of the reasons that I will be discussing with you in later part of this types of partner. First, come to the under type of partner who is active partner. Very simple, but active partner means who is actively participating in business, actively participating in the management of the business. He contributes his capital also. Also, he share profit and loss, and he also has unlimited liability. So, contribute capital, participate in management, share profit and losses, and has unlimited liability. Sleeping or dormant partner, what he does not do is he do not take part in a day-to-day activities of the business. He does not take part in the day-to-day activity of the business, यानी ये business में actively मैनेजमेंट नहीं देखता है, ये घर बैठेगा, अपना काम करेगा, दूसरा काम करेगा, पर यहाँ पे काम नहीं करेगा पार्टनरशिप में. सर ये फिर क्या करेगा, ये पैसे भी लगा देगा और ये प्रॉफिट या लॉसेस में शेयर भी लेगा और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी. उसके अलावा सिर्फ ये इतना नहीं करता है कि बस बिजनेस में आता नहीं. ओके, सीक्रेट पार्टनर means a partner one whose association with the firm is not known to the general public. लोगों को पता नहीं होता है कि ये पार्टनर है. सर ऐसा क्यों हो सकता है? कि इसके आने की वजह से या फिर इसके अपने आप को डिस्क्लोज करने की वजह से लोग फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे. Suppose there was maybe some of the person who was insolvent, हो सकता है कोई insolvent व्यक्ति हो. Insolvent means who at the time of his any time of in his life who had become bankrupt, जिसका दिवालिया हो गया था, यानी जो पैसे नहीं दे पाया था, वो एक बार इंसॉल्वेंट हो चुका है. पर इस स्टेज में वो इंसॉल्वेंट नहीं है, उसकी सारी लायबिलिटी जो है वो खत्म कर दी है. पर क्या उसका नाम बचा? क्या नाम खराब हो गया? अगर वो अपने नाम के साथ कोई भी बिजनेस करता है तो हो सकता है उसके साथ कोई बिजनेस ना करे, तो वो क्या कर सकता है सर? वो किसी दूसरे के साथ मिलकर के बिजनेस कर सकता है, पर बाहर वालों को वो ये नहीं बताएगा कि मैं भी पार्टनर हूँ. अगर बाहर वालों को ये पता पड़ता है, डिस्क्लोज पड़ता है कि ये जो है ये व्यक्ति भी पार्टनर है, तो हो सकता है वो बाहर वाले लोग इनके साथ डीलिंग बंद कर दें. इसलिए उसकी जो पार्टनरशिप है वो सीक्रेट रखी जाती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से सीक्रेट पार्टनर बनने की मजबूरी आ सकती है किसी भी फर्म के एक पार्टनर के साथ.
Apart from this, it has all the distinct feature like he is like rest of the partner, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है पर सीक्रेटली करेगा, और लायबिलिटी जो रहेगी इसकी वो भी अनलिमिटेड ही रहेगी. ओके, ऑलराइट. नाउ कम टू द नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम बाय द फर्म. एक ऐसा पर्सन जो फर्म को अपना नाम यूज करने के लिए देता है. सर ऐसा क्यों होगा कि क्यों कोई पर्सन अपना नाम फर्म को यूज करने के लिए देगा? देखो, फर्म को जरूरत कब पड़ेगी? सपोज यू आर अ ब्रदर और सिस्टर ऑफ अ फेमस पर्सन. आप फेमस सेलिब्रिटी के ब्रदर या सिस्टर है. अब वो जो फेमस सेलिब्रिटी है वो तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उनको तो किसी की जरूरत नहीं है, पर आपको हो सकता है कि बिकॉज ऑफ हिम और हर बीइंग योर ब्रदर और सिस्टर आपको जरूरत पड़ सकती है कि वो सेलिब्रिटी का नाम यूज करके आप अपने बिजनेस को बूम तक ले जा सकते हो. तो क्या वो आपके जो सेलिब्रिटी जो आपके रिलेशन में है, क्या वो आप उनको उनका नाम आपको यूज करने के लिए देंगे? हो सकता है देते. वो हो सकता है आपको परमिट कर दे कि ठीक है मुझे भी पार्टनर लोगों के सामने सिर्फ नॉमिनल पार्टनर बना दिया जाए. उससे क्या होगा, आप जब बिजनेस करोगे तो उनका नाम यूज करके बिजनेस करोगे ताकि आपको बिजनेस में सक्सेस मिल पाए, लोग उनके नाम से आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं. सो नॉमिनल पार्टनर इज नथिंग बट एनी पर्सन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज हर नेम बाय द फर्म. अपना नाम यूज करने के लिए परमिट कर देता है, पर ना ही वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही वो एक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट बनेगा, और ना ही शेयर लेगा किसी प्रॉफिट या लॉस में. राइट, बट ही इज लायबल लाइक अदर पार्टनर. पर उसकी लायबिलिटी तो रहेगी, थर्ड पार्टीज के लिए उसकी लायबिलिटी रहेगी. इट मींस अगर फर्म ने जितना भी क्रेडिट पर सामान लिया होगा, लोन लिया होगा बाहर से, उनको जब भी पैसा देने के लिए ऑब्लिगेशन अराइज होगी तब ये पार्टनर भी सामने आएगा. मतलब इस पार्टनर की ऑब्लिगेशन तो थर्ड पार्टीज यानी आउटसाइड द फर्म को रहेगी. इसके पीछे लॉजिक नहीं बेटा, लोग इसका नाम देख करके फर्म के साथ डीलिंग कर रहे हैं. तो अगर मान लो फर्म की कुछ ऐसी लायबिलिटी अराइज होती है आगे जाकर के, या फर्म के पास पैसे कम पड़ते हैं, इंसॉल्वेंसी का अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस बन जाते हैं, तो ये पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता कि यार मैं तो नॉमिनल पार्टनर था. नहीं, उस टाइम पर इसको थर्ड पार्टीज को जवाब देना पड़ेगा, इनफैक्ट पैसे भी देना पड़ेंगे अगर किसी भी तरीके की कुछ इंसॉल्वेंसी टाइप कंडीशन है तो. ओके, नाउ कम टू पार्टनर बाय एस्टोपल एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ओके, लेट मी मेक यू वेरी मच क्लियर बेटा, ये पार्टनर नहीं होते, एस्टोपल और होल्डिंग आउट पार्टनर नहीं होते. सर ये फिर पार्टनर क्यों लिखा है यहाँ पर? रीजन है उसके पीछे. देखिए बेटा, मैं आपको इसके पहले एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सपोज करिए मिस्टर एबीसी, ये 3 पार्टनर है, ये बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, पर बैंक ने इनको लोन देने से मना कर दिया. अब इनका एक मैनेजर है जो कि डी है, और इनका जो मैनेजर है वो बैंक के किसी मैनेजर की पहचान का है, दोस्त एक्वेंटेंस है, फैमिलियर है उससे. हो सकता है एबीसी बेटा उसको अप्रोच करे अपने खुद के एम्प्लॉय को या मैनेजर को कि यार क्यों ना आप हमारे साथ बैंक चलें और आप हमारी तरफ से बात करें ताकि हमको लोन सेक्शन कर दिया जाए. अब एबीसी तो एक्चुअल में पार्टनर थे, डी इनका पार्टनर नहीं है, पर फिर भी डी इनके साथ बैंक में जाता है बात करने के लिए, क्योंकि डी की रेपुटेशन या डी की पहचान की वजह से हो सकता है इनको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए. उस टाइम पे डी बेटा ऐसा अगर कंडक्ट करता है कि जैसे वो इन तीनों के साथ हैं, या ये 3 के अलावा एक और पार्टनर है, तो फिर इसको भी पार्टनर मान लिया जाएगा. सर ऐसा कैसे मान लिया जाएगा? एग्रीमेंट डीड वगैरह पे नहीं लिखा होगा, भले एग्रीमेंट या डीड पे नहीं लिखा है फिर भी इसको पार्टनर मान लिया जाएगा. तो सर पार्टनर मान लिया जाएगा मतलब ये कंट्रीब्यूशन करेगा? नहीं. तो सर ये क्या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेगा? नहीं. तो सर ये क्या मैनेजमेंट में पार्टनर जैसे ही काम करेगा? नहीं. पर इसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी. यानी पहले जो 3 केस है, क्या ये कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल नहीं करेगा. प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर नहीं लेगा, और ना ही ये किसी भी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस में. पर इसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो बाकी पार्टनरों की तरह ही अनलिमिटेड रहेगी. इट मींस जब बैंक को लोन रिपे करने की बात आएगी, सिर्फ इस बैंक को बेटा, बाकी मैं लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस लायबिलिटी के लिए इसने खुद जाकर के अपना नाम सामने लेकर के और इसने अपने आप को पार्टनर जताते हुए अगर लोन दिलवाया था, सिर्फ उस लोन के लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा. यानी उस लोन की रीपेमेंट के लिए पार्टनर एबीसी 3 नहीं 4 होंगे, यानी एबीसी और डीबी पार्टनर कहलाएगा. राइट.
तो अगर अपने कंडक्ट से, देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्टनर बाय एस्ट्रोपल इफ थ्रू हिज हर ओन इनिशिएटिव, खुद के इनिशिएटिव से आगे बढ़ करके, खुद के कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से वो ऐसा दूसरों को इंप्रेशन देता है क्या कि वो पार्टनर है। अगर वो ऐसा इंप्रेशन देता है तो वो फिर लायबिलिटी से बच नहीं सकता। जो लोन इसको देख करके बैंक ने दिया था या जो लायबिलिटी इसको देख करके लोगों ने फर्म को दी है, उसके लिए खुद भी जिम्मेदार रहेगा, यानी बाकी पार्टनर के साथ इसको भी उसकी लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी बेटा एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है। तो सर यहाँ पर भी क्या वो खुद जाकर के बताता है? नहीं, यहाँ पर खुद जाके नहीं बताता है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये कि ये मना नहीं करता है। वहां पर डी खुद गया, डी ने बात करी, सब कुछ करा और डी को मान लिया गया कि वो पार्टनर है क्योंकि उसका खुद का कंडक्ट और इनिशिएटिव ऐसा था। पर होल्डिंग आउट में बेटा ये खुद नहीं जाएगा, ये खुद बात नहीं करेगा, ये खुद ऐसा नहीं जताएगा कि ये पार्टनर है, पर कि कोई थर्ड पर्सन इसका नाम लेगा कि ये पार्टनर और ये मना नहीं करेगा। सपोज एबीसी तीनों गए मैनेजर के पास, बैंक मैनेजर के पास, साथ में वो डी को भी ले गए। डी चुप करके बैठा, डी ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप करके बैठूंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है आप चुप करके बैठना, पर वहां पर किसी भी चीज के लिए मना मत करना, बात हम करेंगे। एबीसी बात कर रहे हैं मैनेजर से, बैंक मैनेजर से, और डी को इन्होंने बिठा रखा है। नाउ जब भी ये डी की बात करते हैं तो मैनेजर बोलता है अच्छा, ये बोलते हैं हाँ डी भी हमारा पार्टनर है, डी भी हमारे साथ काम कर रहा है, डी भी हमारे बिजनेस में इतने सालों से है। तो मैनेजर डी को पार्टनर समझता है, किसके कहने पे? एबीसी के कहने पे। और डी सब सुन करके वहां पर बैठा होता है, पर डी मना नहीं करता, रिफ्यूज नहीं करता, डिनाई नहीं करता कि मैं पार्टनर नहीं हूं। तो ये भी गलत है। अगर आप पार्टनर नहीं हो तो आप वहां पे फिर डिनाई कर सकते हो। अगर आपको कोई होल्ड आउट कर रहा है कि ये सब पार्टनर, यू कैन डिनाई। अगर आप डिनाई नहीं करते उस टाइम पे उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो और आपने किसी भी तरीके से रिफ्यूजल नहीं दिया है, तो फिर मान लिया जाएगा कि आप भी पार्टनर हो उस पर्टिकुलर लोन के लिए, और वो जो लोन है वो आपको भी इनके साथ मिल करके चुकाना पड़ेगा अगर किसी भी केस में लायबिलिटी अराइज होती है। तो चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ, जानते हुए भी अपने आप को अलाउ करता है टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, अपने आप को रिप्रेजेंट होते हुए देखता है पर मना नहीं करता, वो अलाउ कर देता है कि ठीक है मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हो। Such a person becomes liable outside creditors. Such a person becomes liable to outside creditors for repayment of any debt which have been extended to the firm on the basis of such representation. इसके साथ अगर वो चाहता है कि उसको नहीं माना जाए पार्टनर, तो वो अपने आप को सेव कर सकता है। पर सेव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इमीडिएटली उसको डिनाई करना पड़ेगा, क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि उसकी जो पोजीशन आप समझ रहे हो कि वो पार्टनर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी वो पार्टनर नहीं है। यानी उसको आगे लेके बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही नहीं, आई एम नॉट दी पार्टनर, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एज अ पार्टनर, आई एम नॉट अ पार्टनर, राइट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो पार्टनर कहलाएगा। अगर वो बोल देता है कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूँ, तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में नहीं आएगा, राइट। सो हमने देखे बेटा 4 टाइप्स पार्टनर के, जो एक्चुअल पार्टनर होते हैं, और 2 हमने देखे जो एक्चुअल पार्टनर नहीं होते पर उनको मान लिया जाता है वो पार्टनर, क्योंकि वो ऐसा एक्ट करते हैं कहीं पर, या फिर मना नहीं करते जब उनको पार्टनर बताया जाता है, वो रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ओके, तो चलिए आज हम यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद हम और भी आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो तब तक बेटा अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और हाँ इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप चाहते हैं आपके दोस्तों का भी फायदा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, है ना। इस फायदे को आप अपने तक मत सीमित रखिए, और प्लीज 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 जितना हो पाए इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपके साथ और भी मैं शेयर कर पाऊँ। ओके, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।